See student, now here is the basic proportionality theorem, or it is also known as Thales theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, means यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है कि there is one triangle, so we have taken one triangle. So I have tried to take a big triangle. We have taken one triangle, okay, and we can give it name as A, B and C. Then they are telling a line is drawn parallel to one side of a triangle. कोई भी triangle की parallel, हम किसी एक side से parallel line बनाते हैं. तो here BC, if I take one side, तो I will draw a line parallel to BC. So I have drawn a line parallel to BC. I'll put this arrow. ये इस तरह के arrow keys होते हैं. Two lines are parallel. Okay. To one side of a triangle to intersect the other two sides. तो other two sides को intersect कर ही रही है. If this line is parallel to BC, so obviously it is intersecting the two sides. किस side को intersect कर रही है? It is intersecting AB and it is intersecting AC at two distinct points. The other two sides are divided in the सेम रेशियो. अब ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है. डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है. तो लेट अस गिव इट सम नेम. सो आई एम गिविंग इट नेम एज B and E. Okay, now we have to prove that. What we have to prove? That the other two sides are divided in the same ratio. Other two sides कौन सी भी इसके तो पैरेलल हो गई. तो other two sides ये हैं. तो दिस टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो. मतलब आपको बताना है कि रेशियो ऑफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. हमें ट्राइंगल की जो साइड्स हैं, दो साइड्स, उनके रेशियोज एक्सप्लेन करना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट द फर्स्ट स्टेप, एज वी नो कि व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड given. तो हम in very simple words we are going to write here. Okay, it is the proof or solution. The first thing you will write given. क्या given है? triangle ABC और इसमें DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. हमने draw करी है. Okay, we have drawn, means is given. To prove, हमको क्या प्रूव करना है? We have to prove that ratio of AD upon DB will be equal to AE upon EC. Okay, जब हमें ये प्रूव करना है तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शंस. We cannot prove it without construction. तो जो हम construction करेंगे that we will mention here properly. तो हम construction के लिए क्या कर रहे हैं? हम construction के लिए पहले दो चीज़ें कर रहे हैं. हम construction के लिए पहली चीज़ हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, we are joining. See, I have changed the color for you. डिफरेंस दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा तो we'll change more color. थोड़ा दूसरा कलर और ले लेते हैं. Let us take some red color. मैं को दिखाओ. ये हो गया. हमने ज्वाइन करा. क्या ज्वाइन करा? BE. और क्या ज्वाइन करी हमने? DC. तो हम यहाँ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन. हमने क्या ज्वाइन करी? We have joined BE and BC. ये हमने ज्वाइन करा. एंड देन वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑल्सो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. तो वी विल ड्रॉ हाइट, मतलब परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे. तो मैं E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ 90 डिग्री का. ओके, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ D से, एंड इट विल ऑल्सो मेक अ 90 डिग्री. एंड आई एम गिविंग इट नेम एज M and I am giving it name as M.
ओके, सो सेकेंड थिंग हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? फर्स्ट वी हैव join the line BE and DC, and then we will write here what then draw perpendicular. हमने perpendicular draw करी है, तो we will write here draw perpendicular. कौन कौन सी perpendicular draw करनी है? Okay, we will not write draw DM perpendicular to AE and EN perpendicular to AD. ओके, EN ड्रॉ करी है perpendicular to AD. क्लियर? अब हम पता लगाएंगे ट्राइंगल्स, दोनों जो नए ट्राइंगल्स जो हमें बने हैं उसके. Can note it down. I'll hold it down आराम से. Return construction join BE and DE and draw DM perpendicular to AE, okay, and EN perpendicular to AD. Now see now going for proof. Okay, so look here what I am doing. You draw separate figure. आप separate figure बनाएंगे. Okay, since I am solving on blackboard, so I am not drawing separate figure. मैं इसी में change कर रही हूँ. But in your copy you will be drawing the figure again. और अब हम we will take two triangles at a time. यहाँ पे हमें बहुत सारे triangles दिख रहे हैं. Okay, so for your convenience, first triangle which I am taking is A, D और E, और दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ मैं B, C, सॉरी A, D, E, और दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ मैं B, D, E. ओके, तो लुक हियर व्हाट आई एम डूइंग. हटा दिया मैंने. यू विल बी ड्रॉइंग दिस न्यू फिगर. विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है. ओके, दैट इज द रीजन आई हैव डन दिस. तो व्हाट वी आर टेकिंग, हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं. कौन कौन से दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं? बिल्कुल ध्यान से देखें. वन ट्राइंगल आई एम टेकिंग हियर ए डी ई. देखो मैं इसको डार्क कर दे रही हूँ. कैन यू सी इट? ए डी ई. जब आप सेकेंड टाइम व्हेन यू ड्रॉ द फिगर, ड्रॉ इट डाउन. एंड द सेकेंड ट्राइंगल आई एम टेकिंग एज BDE. BDE. I'm making it with red color. Why we are taking this two triangles? Any reason you can tell me? We will apply the area of triangle. हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला वी विल यूज बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इस वाले ट्राइंगल के लिए व्हेन वी विल सी, ओके, तो एडी विल बी बेस, EN ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इट विल बी हाइट, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाफ तो आ ही जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE विल बिकम हाफ इंटू बेस. बेस हमारा है AD इंटू हाइट है हमारी EN. ओके, और फिर नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया लेंगे. कौन से वाले ट्राइंगल का? ट्राइंगल BDE. और जब BDE का एरिया लेंगे तो बेस विल बी BD और हाइट, इसमें हाइट दी नहीं है तो कभी कभी हाइट ट्राइंगल के बाहर भी होती है. तो सी इट इज कमिंग फ्रॉम सेम वर्टेक्स, तो हाइट हमारी क्या आ जाएगी? EN. ओके, इसके लिए बेस हुआ BD और हाइट हुई EN. मीन्स द हाइट इज सेम इन बोथ दी ट्राइंगल्स. और हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का वी विल फाइंड दी रेशियो. ओके, आई हैव सॉल्व्ड इट हियर फॉर यू. सो लुक हियर, फर्स्ट लाइन वी विल बी राइटिंग प्रूफ. हमने यहाँ प्रूफ लिखा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू EN. एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो अभी नीचे हमने बनाया था, हाफ इंटू BD इंटू EN.
और इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो, मतलब पहले वाला ट्राइंगल ऊपर, सेकेंड नीचे, सेम वे हियर अप एंड हियर डाउन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर प्लेस करेंगे. देन व्हाट यू विल डू, जो आपसे कैंसिल हो सकता है, जैसे हाफ और हाफ वी कैन कैंसिल, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. अगेन देखिए हाइट सेम है, ई एन और ई एन, तो यू विल कैंसिल दिस हाइट. तो क्या बचा, खाली बचा ए डी अपॉन बी डी. तो ए डी अपॉन बी डी, ये आपका, यू विल नेम इट एज इक्वेशन 1. व्हाट यू विल नेम इट, यू विल नेम इट एज इक्वेशन 1. ये हमारा फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गया. अब नाउ वी विल अगेन कम टू दी फिगर. अब हम फिगर पे दोबारा देखेंगे. ओके, पे अटेंशन हियर. मैं इसी फिगर में चेंज कर रही हूँ, बट फॉर सेकेंड केस यू विल बी ड्रॉइंग द न्यू फिगर. अब सेकेंड केस में मैं क्या करूँगी, इधर देखिए जो अपना स्टार्टिंग का फिगर है ना, उसी को देख के बनाना. तो हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट वी हैव टेकन, वी हैव टेकन m. हमने लिया था m, तो आई विल राइट हियर m. ठीक, और सेम वे यू विल नॉट कंसिडर दिस ट्राइंगल. अब जो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे वो कौन सा ट्राइंगल होगा, ठीक है. तो ट्राइंगल के नेम कौन से हो गए, ऊपर वाला ट्राइंगल तो सेम है, ए डी ई, ऊपर वाला ट्राइंगल सेम है, ओनली व्हाट वी हैव चेंज्ड इज दी हाइट. अब हाइट क्या लूंगी मैं, डीएम, और बेस मेरा क्या हो जाएगा, ए ई. फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और इधर की तरफ से अब मैं ट्राइंगल जो लूंगी वो लूंगी डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल. क्लियर, यहां से लेंगे डी ई सी, ये वाला रेड कलर से बनाने की कोशिश करी है मैंने. ओके, तो नाउ यू कैन सी ये वाला ट्राइंगल. अब जब हम ए डी ई, ट्राइंगल तो सेम है, बट क्योंकि हाइट चेंज हो गई तो बेस विल ऑब्वियसली चेंज. तो बेस विल कम ए ई और हाइट विल कम डी एम. और जो सेकेंड ट्राइंगल जिसका हम रेशियो लेंगे वो होगा हमारा डी ई सी. डी ई सी, तो डी ई सी में अगेन देखें हाइट बाहर है, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, ई सी. ई सी विल बी माई बेस, और इस ट्राइंगल के लिए हाइट विल बी डी एम. हाइट विल कम सेम. ओके, तो हम ये दो ट्राइंगल्स के रेशियोज निकालेंगे. सो अगेन फॉर यू आई हैव रिटर्न हियर, यहाँ देखें. ओके, so you can see here area of ADE is equals to half into AE into DM. Okay, base into height. And same way area of DEC is equals to half into EC into DM, मतलब base into height. Again इन दोनों का रेशियो लेंगे, मीन्स ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में लिखा, वैल्यू पुट करी. अगेन जो हमसे कैंसिल हो सकेगा वी विल बी कैंसिल दैट, लाइक हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा. ओके, अगेन डीएम और डीएम दोनों में हाइट सेम है. दिस यू कैन रिमेंबर एज अ हिंट कि जब भी आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थियरम्स थ्योरम प्रूव करनी है तो आप दो दो ट्राइंगल्स की जो रेशियो लेंगे उसमें एक तो हाफ एंड हाफ कैंसिल होगा और एक दोनों की हाइट शुड बी सेम, तो वो कैंसिल होगी. तो अब आया ए ई अपॉन ई सी, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2. क्लियर. अब एक और चीज जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, वी विल रिकॉल दैट, कि अगर दो ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, अगर सेम बेस या सेम पैरेलल के अंदर अगर दो ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके एरियाज क्या होते हैं, इक्वल. दिस थिंग वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास. तो वी आर यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी. वी नो दैट ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी. अब वापस से इधर फिगर में देखें, दो ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. कौन सा दो ट्राइंगल के लिए, इधर देखें. एक तो है अपना बी डी ई, ये स्टार्टिंग फिगर में चली गई मैं वापस. आई वेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द फिगर जो अपन ने बनाया था ना, इस तरीके से. तो ये दो ट्राइंगल बने. ओके, ये दो ट्राइंगल बी डी ई, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा डी ई सी. ये नीचे वाले दो ट्राइंगल्स, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. ये दोनों पैरेलल है और दोनों का बेस भी क्या है, सेम है. दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो देयर एरिया विल बी इक्वल. ये सबसे लास्ट लाइन अपन ने लिखी है, देखिए
area of BDE is equal to area of DEC। अब ये मतलब दोनों एरियाज भी क्या हैं, आपस में इक्वल है। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम माइंड में रखेंगे तो वी विल बी एबल टू प्रूव द थ्योरम। तो हम क्या लिख देंगे, thus here I am writing for you, okay, by what we will write, by equation 1, 2 and 3, तीनों इक्वेशन 1, 2 and 3 तीनों इक्वेशन के हेल्प से we can say that, हम क्या बोल सकते हैं, we can say that, क्या बोल सकते हैं, I am writing here down आपका AB upon DB is equals to AE upon EC, hence proved। ये क्या हो गया है, proved, hence proved। दोनों साइड्स के रेशियोज क्या हैं, सेम आ गए। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। आप फिगर में देख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अपन ने दोनों रेशियोज साइड्स के जो हैं दे आर डिवाइडेड बाय parallel line in the equal ratios, so here it's proved, okay, and solve the theorem again and again so that method get fixed in your mind। पहली बार में हो सकता है थोड़ा सा अटपटा लगे, बट व्हेन यू विल सॉल्व इट 2-3 टाइम्स समझ के सॉल्व करें कॉपी पेन लेके प्रॉपरली, देन ऑटोमेटिकली it will be a smooth process for you। once you are thorough with the theorem, exercise solve करना will be very easy। clear?